and now this new track that you have dropped, bro. What's happening, man? Hey man, just trying to have fun यार. मतलब I constantly feel like evolve होना बहुत जरूरी है. और जो भी तुम काम कर रहे हो ना उसके साथ मजे आने बहुत जरूरी है. क्योंकि होता क्या है, आफ्टर अ पॉइंट which I firmly believe now, your passion and your love turns into a job. एंड जब वो नौकरी बन जाती है ना तो बहुत अजीब सा सिस्टम हो जाता है. इंसान मजे लेना भूल जाता है. इंसान सिर्फ ये सोचता है कि मेरे को ये काम करना है, कि काम पूरा होगा तो उससे कुछ रिजल्ट आएगा, उससे घर की बाकी चीजें चलेंगी. बट विद दिस सॉन्ग I only had one thought. I need to have fun and go back to my roots. That's it. भाई आप थोड़ा गाने को ब्रेक डाउन करिए. घना कसूटा means what? Am I pronouncing it right? Have I got the pronunciation right? Kasuta. कसूटा. हाँ तो Like भाई जैसे जूता होता है ना, जूता. It's हाँ the, not the, but the at तो the end. हाँ, the. कसूटा. Kasuta. Ah, my G Glenn. Always right, man. Yeah, perfect. Kasuta. And Kasuta means awesome. Awesome. कि कैसा लगा? Awesome लगा. कैसा था भाई वो खाना खाए कैसा? घना कसूता था भाई. वहां गए पार्टी कैसी थी? घना कसूता मजा आया. गाड़ी कैसे? कसूती गाड़ी है. कुछ भी मतलब इफ जैसे यहाँ का बहुत हार्ड है ना, वो हरियाणा का घना कसूता है. स्ट्रेट अप. I love the way you broke this down, brother. And this collaboration with Rashmi. आप लोगों ने पहले भी काम किया है, असल में भी मैंने देखा है. फिर एक और बार आपने got you come together, आपके record label के साथ भी वो काम कर चुकी हैं. She's an absolute talent, man. She's unbelievable. So tell me, रश्मि कौर के साथ on this particular track collaboration कैसे हुआ? यार रश्मीत इज लाइक फैमिली टू अस. इट्स कलमकार इज अ फैमिली. और कलमकार में जो भी आर्टिस्ट है हम सब आपस में बहुत आइडियाज एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे का पोटेंशियल और पावर समझते हैं. लाइक आई नो रश्मीत हैज दैट वोकल जो वो अर्बन में भी उतनी अच्छी तरीके से फिट करती है जितना वो क्लासिकल में करती है. तो दैट ये वेराइटी. कैसे करती है? This is what I don't understand. How does she have that range? मैन ऑल आई विल से इज दैट इज व्हाई शी इज कलमकार एंड दैट इज व्हाई सोनी पिक्ड हर अप. वरना हलवा थोड़ी है. Well said, bro. So you guys came together for this track और थोड़ा बहुत बताइए ना इस गाने के बारे में. वो every artist whenever they make a song या कोई गाना होता है वो एक feel के कारण होता है. I feel this is you. This has got a desi swag. This has got so much of hip hop. It's a mixture of everything that you are as a person. So या what मैन, I don't know if I'm going on the right track with what I feel. नहीं बिल्कुल सही समझ रहे हो. जो 7वीं 8वीं क्लास में हॉस्टल में सोनीपत में हरियाणा में पढ़ने वाला बच्चा था ना, दिलिन नायर, उसने जो वहां सीखा ये उसका मिश्रण है. इट्स हाउ ही एक्सप्रेसेस थिंग्स. जैसे मैं भी, मुझे आदत लग गई थी उन 2 सालों के अंदर. दोस्त मेरे सारे यादव जाट ऐसे ही लोग हैं, तो हम ऐसी ही बात करते थे कि कसूता मामला हो गया यार, कसूता काम हो गया, बावड़ा हो रहा है कि, मतलब हम बात ही ऐसे करते थे. तो ये मेरा रूट्स है. जब ये गाना आएगा तो आई नो माई द पीपल हु picked me up from Swag Mera Desi are going to be happy because this is the Raftar from the roots. This is the Raftar who is a Malayali but represents Haryana, Punjab, Delhi because music has no language. Raftar bhai, I just feel like you're like pan India, man. You can cater to anybody, and that's the best thing about you. You can manage to have this thing जहाँ पर you just have this connect with everybody. You just form this bond with everybody. And also, what I've realized over a period of time with your music and with you as a person, whatever I've known you, you're a very no bullshit guy. You're Yeah, like man, my it lands me in trouble too. It lands me in trouble too, but that's it. But at least brother. I'm clean. I have to tell you this. मैंने आपके गाने सुने हैं. मैंने आपके गानों दिल्ली वाली बातचीत तो plays on blast sometimes when I've been like, so I have a bad This day is going being on. said by an RJ in Mumbai. Understand, there is love. It doesn't matter whether you're from Delhi or Mumbai. दिल्ली वाली बातचीत मुंबई में लोगों को पसंद है. That's enough said. गाने के साथ भी यही मकसद था ब्रो, कि सिर्फ वो फन वाला जो एलिमेंट है ना जिससे बाउंड्री नहीं होती. आजकल देखो, वी आर एंजॉइंग सॉन्ग्स फ्रॉम श्रीलंका. वी लव सॉन्ग्स फ्रॉम क्रॉस बाउंड्रीज. Right. लैटिन तो हमने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है, स्पेनिश म्यूजिक तो हमने ऐसे अपना लिया है, मालूमा वगैरह को, जैसे हमारे हमारे यहीं के सदस्य हैं. Right. लाइक यू, द अमाउंट ऑफ रील्स, अमाउंट ऑफ टिकटॉक्स, शॉर्ट वीडियोस, व्हाटएवर, इतनी बनने लग गई है इन गानों में कि म्यूजिक के पास बाउंड्री नहीं है यार. जस्ट टू थिंक कि मैं इस, देखो ये गाना मैं पूरा हिंदी में भी बना सकता था, वही तर्ज रहती, वही मेलोडी रहती, पर ऑथेंटिसिटी अब वो एक्सेप्ट होने लग गई है. पीपल एक्सेप्ट द ऑथेंटिक वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट नाउ. And I think, like, even when I met you and I've met you for all these years, you've always maintained one thing: to be very honest and authentic to your craft, to be very true to what तुम जो कर रहे हो. अगर वो तुमने एकदम authentically, honestly किया, then you will take your music to a different level. But भाई, one more thing यार, you've taken music
judging, dancing, singing, everything. Now on comedy, bro, you slayed it. Oh, No man, I and I tell tried. you one thing, I have मैंने this उतना big अच्छा किया ego. जितना अच्छा समय ने लिखा. भाई 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 agreed, लेकिन अल्टीमेटली आप स्टेज पर भी रैपर के रूप में ही गए. I was observing small हाँ, वो nuances. मतलब हाँ. Your mic was held like this. You were like this with the Yeah mic, man, and I was like, I it's was like, just bro, habitual chill. man, like yeah. वो मैं कोशिश कर रहा था कि यार आई एम ट्रीटिंग द ऑडियंस आल्सो लाइक अ रैपर, लाइक आई वांटेड टू गेट इन बिटवीन देम एंड टॉक. पर उस टाइम पे पता है क्या, दिस पर्टिकुलर एपिसोड एंड सीरीज वाज शॉट बहुत चीजों को ध्यान में रखते हुए. लाइक सब 6-6 फीट दूर बैठे हुए थे, सब मास्क Right. पहना हुआ था ने, और लोग इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे थे. सो व्हेन इट कट्स ऑफ द इंटरेक्शन इट गेट्स मच मोर डिफिकल्ट. Yes. पर एक्सपीरियंस कि अगर ये संभाल लिया तो फिर कुछ भी संभाल लिया. क्या बात बोली आपने, वेरी वेल. बट आई थिंक यू डिड अ फैब जॉब विद दैट लाइन, जब 3 नाम मिल जाते हैं एक साथ. ओह क्या मैन. ओह. हाँ मतलब मुझसे यूजुअली लोग ऐसी बात करते हैं कि यार कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो, उस बारे में क्या कहना चाहते हो. 10 साल आगे आ चुके हैं, वहीं फंसे हुए हैं लोग. तो हुआ क्या इतने सालों में, सिर्फ न्यूज बनी है. हम में से तीनों को कुछ नहीं बिगड़ा, हम खुश, परिवार खुश. सो आई थिंक दैट बिकम्स एनीथिंग एनीथिंग दैट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड बिकम्स कॉमिक. हाँ भाई, और एक पॉइंट के बाद ना वो ये हो जाता है, उसका हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है. अभी हो गया, जैसे आपने कहा ना 10 साल पहले से यही चल रहा है, चल हो गया, चल नया कुछ कर लेते हैं. अभी हम नया म्यूजिक क्रिएट करते हैं, नए 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 मौके दे देते हैं लोगों को. या ब्रो, ये बहुत जरूरी है. मतलब दिस थिंग नीड्स टू कीप ऑन हैपनिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. No, but एंड you know, मतलब डोंट लिमिट योरसेल्फ. पता है मैं समझ सकता हूँ यार, एक आर्टिस्ट जो होता है ना उसके अंदर ना बहुत खूबियां होती है. अगर एक रैपर रैप लिख पा रहा है ना तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा डायरेक्टर छुपा हुआ है. बिकॉज स्टोरी राइटिंग एंड ही इज right. डायरेक्टिंग इट इन हिज हेड कि मतलब मैं ऐसे था, यहाँ पे था, इस उसको वो पुरानी बातें याद आ रही हैं, एक पिक्चर की तरह दिखती है सब कुछ. हमको वो सबकॉन्शियसली वो 35 mm की इतनी आदत हो गई है, 70 mm, हाँ, कि हम लोग सपने भी उसी में देखते हैं, उसी स्केप पे, है ना. तो वो जरूरी है कि आपको जो पसंद है ना वो करो. एट द एंड ऑफ द डे यू आर राइटिंग योर ओन स्टोरी एंड एवरी चैप्टर मैटर्स. सो या I मैन, absolutely फॉर agree. द But there's चैप्टर्स one chapter in your life which many of your fans should know, and I would like to tell them this. Raftar bhai is very, very up to date with technology and things जो उनकी घर के आसपास होती है, उनकी लाइफ के आसपास होती है. एक अमेजिंग चीज रफ्तार भाई की घर में है, जो सिर्फ मुझे मालूम है. भाई वो एब्जॉर्ब के डब्बे अभी भी हैं क्या? मैं भी अपने घर में अरे रखता हूँ. अरे साल के क्या, अब तो बाल्टी है ब्रो, डब्बे नहीं बाल्टी है अब. For people who are not getting context of what we are talking, रफ्तार भाई and I stay closer to the ocean, तो जो मॉइस्चर है बहुत ज्यादा आ जाता है घर के अंदर. तो उसके चक्कर में मैंने स्टूडियो रफ्तार में भाई को बहुत पूछा था. सामान है यार. हाँ जी. स्टूडियो में बहुत सामान है, स्टूडियो में बहुत सामान है यहाँ पे, बचा के एग्जैक्टली. रखना पड़ता है. तो कैसे बचा के रखता है अपने सामान को, अपने इक्विपमेंट को? तब रफ्तार भाई केम आउट विद अ फॉर्मूला, ये लो. ओह मैन, यस यस. और अभी तक ब्रो, अभी तक चल रहा है एकदम सक्षम तरीके से, सब चल रहा था. आज सुबह ही एक चीज खराब हुई है, बट आई होप इट्स नॉट मॉइस्चर. Nah, fingers crossed, man. Fingers Yeah, crossed. We started this show, Fever Originals, about 2 years back when everybody said denied us also, by literally saying that, अबे तुम लोग, not that I don't like फिल्मी गाने, I love फिल्मी गाने, हमारी रोजी रोटी वहां से निकलती है भाई. बट जब हमने कहा था कि हम ऐसा एक शो स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल म्यूजिक का, तो लोगों ने कहा कि यार, कुछ लोग थे जो मेरे दोस्त भी थे और कुछ वहां से कि यार भाई ये ओरिजिनल म्यूजिक कितना चलेगा, क्या चलेगा. हाँ हाँ अब भाई फिल्मों का हाँ. जमाना है, वही चलेंगे. कहाँ हो भाई तुम, कहाँ है, ये कहाँ थे, ये कहाँ है ये जो इंडी पे कुछ बोल रहे थे. ब्रो इट्स वेरी नेसेसरी. मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्यूचर को डिनाई नहीं करना चाहिए. और ये भी उस चीज का पैक्ट है कि आजकल के बच्चों ने अपनी आवाज को आगे पहुंचाने का तरीका ढूंढ लिया है. They have figured it out. So there is no way any company, any media, any infrastructure is gonna filter out people who are really good. Whether they get a big screen behind them, they have an actor with them, और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब आपको फिल्टर नहीं कर सकता है. तो बच्चों ने जो गाने बनाने हैं, द यंगस्टर्स, आई ऑलवेज से बच्चे, क्योंकि अब वो यंगस्टर्स हैं भाई. आई एम इन माई 30s, दैट मीन्स अनदर जनरेशन इज ऑलरेडी रेडी, जिन्होंने तैयारी कर ली है. और उन्होंने जो हमने सीखा था ना वो सब भी घोट के पिया, प्लस अपना ऐड किया है. तो किसी भी तरीके से किसी चीज को पैकेज करना अब मुश्किल है. सो योर शो इज एन वेरी गुड आउटलेट फॉर इट. कोई भी गाने बनाता है और उसके पास किसी चीज का सपोर्ट नहीं है, वो पैकेज नहीं है, बट उसके पास एक स्टेशन है जहां पे उसकी आवाज जा रही है, और वही फ्यूचर है ब्रो. क्योंकि ये जो अपनी आवाज वाले लोग हैं ना, इंडी वाले, वो कल के स्टार होते हैं. देन बॉलीवुड कम्स टू देम कि हमारे साथ ये गाना कर लो.
Bro, you're so hard, man. I always say you live your heart on your sleeve, and that can get people like you and me into a lot of trouble because I'm like that. जो है भाई बोल देंगे भाई. It's my middle name. हाँ Tough trouble tar. भाई भाई before we drop your track right now, एक दो लाइन हो जाए brother, then we'll continue. Definitely यार. जब गाम का छोरा काड के टोरा चोरी चोरी ताके से मन घना कसूता लागे से मन घना कसूता लागे से तेरे पैर जमी पे रुकते ना जब मेरा गाना बाजे से मन घना कसूता लागे से मन घना कसूता लागे से. भाई this मन घना कसूता लागे से is going to become like a hook line. At least वो चढ़ जाता है भाई. I hope so bro. मेरी तो आदत थी, मेरा तकिया कलाम था ये, और तकिया कलाम ही गाने आजकल. I know, quite literally. Well, Sir bhai, you've always entertained us with your music. You've always given us so much of love. आप टेक्नोलॉजी के साथ, नए टैलेंट के साथ बहुत सारी चीजें करते हैं. We're really, really happy that you do these collaborations. You create this kind of music. Your move part, which is most important, because जो दिल में बात है वो सीधा बोल देते हैं. ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे सामने कुछ और कहीं और कुछ और. हाँ यार, मतलब इसलिए मुझे लगता है कि जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये यही है. And they accept me the way I am. मेरी पर्सनालिटी हर दूसरे दिन चेंज नहीं होती है. तो अच्छा रफ्तार भाई, एक गलत हो लास्ट सकता हूँ, मैं सही हो सकता हूँ, पर मैं यही हूँ. वेरी सिंपल मंत्रा इन लाइफ, विच आई शूट पे भी मैं यही बोलता हूँ, स्टूडियो में भी यही बोलता हूँ, जब भी काम आरंभ होता है, पहले चलो. दैट इज ऑल यू नीड टू नो. कीप ऑन डूइंग इट. इंसैनिटी की डेफिनेशन है ये. फार क्राई 3 में वास्ट ने बोला था, एक चीज को बार बार करते रहना और सोचना कि एक रिजल्ट कुछ और आएगा, पर आता है. वो इंसैनिटी है, वो बहुत जरूरी है. कीप दैट इंसैनिटी इन योर हेड. मैं आज भी रोज सीखता हूँ. लाइक आई सिट, आई हैंडल द स्टूडियो माई सेल्फ, कि कुछ भी वायर हो गया तो आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी कि ओ मेरा कुछ खराब हो गया, प्लीज कोई आए रेस्क्यू मी. आई एम नॉट अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस. नोबडी इज. इट्स ऑलवेज अबाउट दैट लिल एक्स्ट्रा. हर बंदा रात को जाके नौकरी से आके म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहा है, जो साइड हसल कर रहा है, पर एक ना वो एक्स्ट्रा वाला कीड़ा पागल वाला आदमी होता है जो नींद अपनी सैक्रिफाइस कर रहा है, जो सो 4 घंटे रहा है, जो कैब में सो रहा है और फिर भी उसको करे जा रहा है. वो पहला बंदा होगा जो नौकरी छोड़ेगा अपनी. मैं देखो ऐसी घुमा फिरा के बात करता हूँ ताकि समझदार ही समझे, एंड वो समझदारी लिल एक्स्ट्रा है. It takes a lot to shut a man who gets paid to talk. So thanks for doing that for the second time, third time, fourth time. Innumerable times I meet you. It takes a lot to do that, bro. Man, I'll tell you, it is तेरी आंखों में ना रिस्पेक्ट दिखती है. It's some people, it's their character. कि बड़े हैं, बहुत ज्यादा किए हैं, और वो ना I can read now. A lot of us can after a particular age. We all can, and it shows, man. You're an honest person. Thank you for the love. Thank you, bro. And I'm telling you, I wish I could show you through the screen. I had goosebumps when you spoke, and because there are, हर बारी whenever artists talk, वो एक दिल से बात होती है ना. Okay, guys, this I know it's not part of the interview, but I don't have to speak. So I'm just saying that when two artists speak, right? I'm sure you're going through something in your own personal space, whatever it is. And when two people speak, there's something. I believe this. Like my grandmother said that whenever in life you want to achieve something or you're on the verge of achieving something, you'll meet some guardian angels who will help you complete a journey. और फिर वो निकल जाएंगे. और फिर आपको जब जरूरी है वापस वो आ जाएंगे. Exactly. जब वो लड़की होती है ना, उसे सोलमेट कहते हैं. उसका यही होता है पर्पस. जो पहली वाली दिल तोड़ के जाती है ना, पहले वाली, उसका पर्पस यही आता है. वो आती है आपके दिल में वो पैशन जगाने के लिए. अच्छा कि मेरे में ये कमी थी, अब मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाता हूँ. और ऐसे बहुत लड़कों के हाल है और ऐसे बहुत लड़कियों के हाल है. तो भाई दिल खोल के चलो, टूटने दो, रॉक स्टार बनोगे. You're not soulmate. You're my boulmate. Man, क्या बात है. Rabdar, thank you so much for your time. Thank you so much for the love. I wish we could meet in person, studio में वगैरह, तो बहुत ज्यादा मजा आता. but ठीक है, वो भी होगा, बहुत जल्द होगा. हाँ, मतलब यारी अपनी टॉप नॉच, तेरे नाम में है मेरा फेवरेट स्कॉच.